بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا عورت کو بھی ہم بستری کی خواہش ہوتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، عورت بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں، اس میں بھی فطری جنسی خواہش ہوتی ہے۔ سوال ہے، رمضان میں اگر دن کے وقت ہم بستری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں دن میں ہم بستری کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، اس میں لاپرواہی نہیں چلتی۔ سوال ہے، کیا رمضان میں رات کے وقت ہم بستری جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، افطار کے بعد سے سحری تک میاں بیوی کے لیے جائز ہے۔ سوال ہے، اگر رمضان میں بھول کر ہم بستری ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب ہے، یہ عملی طور پر بھول جانا بہت کم ہوتا ہے، مگر اصولی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ ہو تو گناہ نہیں۔ البتہ فقہی مسائل کی تفصیل کے لیے مستند عالم سے رجوع کرنا بہتر ہے، کیونکہ کفارہ اور قضا کے احکام نیت اور کیفیت پر منحصر ہوتے ہیں۔ سوال ہے، کیا غسل نہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، اگر فجر سے پہلے جنابت کی حالت ہو اور غسل بعد میں کریں تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے غسل فرض ہے، اسے ٹالنا درست نہیں۔ سوال ہے، نکاح کے بغیر ہم بستری کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، یہ زنا ہے اور اسلام میں سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ سوال ہے، شادی کے بعد ہم بستری فرض ہے یا نہیں؟ جواب ہے فرض نہیں، مگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق رکھتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔ سوال ہے، کیا ہم بستری عبادت بن سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر نیت پاک ہو، حلال دائرے میں ہو اور ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نیت واقعی چیز بدل دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا زیادہ ہم بستری صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب ہے، اعتدال میں ہو تو عام طور پر نقصان دہ نہیں، حد سے زیادہ ہر چیز نقصان دیتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا جذبات۔ سوال ہے، کیا زیادہ ہم بستری سے کمزوری آتی ہے؟ جواب ہے، یہ عام غلط فہمی ہے، صحت مند انسان میں اعتدال کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، البتہ اگر پہلے سے کمزوری یا بیماری ہو تو معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، اگر شوہر بیوی کو نظر انداز کرے تو کیا گناہ ہے؟ جواب ہے، بلا وجہ ازدواجی حقوق ادا نہ کرنا ناپسندیدہ اور بعض صورتوں میں گناہ ہو سکتا ہے۔ نکاح صرف نام کا معاہدہ نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ سوال ہے، کیا بیماری میں ہم بستری جائز ہے؟ جواب ہے، اگر طبی نقصان کا خطرہ ہو تو پرہیز بہتر ہے، دین خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال ہے، کیا ہم بستری سے محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر احترام، جذباتی تعلق اور اعتماد موجود ہو تو ازدواجی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہم بستری جائز ہے؟ جواب ہے، عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، جب تک صحت اجازت دے اور نکاح قائم ہو جائز ہے۔ سوال ہے، رمضان المبارک کس اسلامی مہینے کا نام ہے؟
जवाब है ये इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है। सवाल है रमज़ान में कौन सी इबादत फ़र्ज की गई है? जवाब है रोज़ा रखना। सवाल है रोज़ा किस सन में फ़र्ज हुआ? जवाब है 2 हिजरी में। सवाल है रोज़े का मकसद क्या है? जवाब है तकवा और परहेजगारी पैदा करना, यानी सिर्फ भूखा रहना नहीं, खुद पर काबू पाना। सवाल है रोज़ा कब शुरू होता है? जवाब है सहरी के वक़्त ख़त्म होने यानी फजर के आगाज़ से। सवाल है रोज़ा कब ख़त्म होता है? जवाब है मगरिब की अज़ान पर। सवाल है सहरी खाना कैसा है? जवाब है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल है इफ्तार किस चीज़ से करना सुन्नत है? जवाब है खजूर या पानी से। सवाल है रमज़ान में कौन सी रात सबसे अफजल है? जवाब है शबे कदर। सवाल है शबे कदर किस अशरे में आती है? जवाब है आखिरी अशरे में। सवाल है कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब है रमज़ानुल मुबारक में। सवाल है तरावी की नमाज कब पढ़ी जाती है? जवाब है इशा के बाद। सवाल है तरावी की कितनी रकअतें होती हैं? जवाब है आमतौर पर 20 रकअतें। सवाल है रोज़ा किस पर फ़र्ज है? जवाब है हर आकिल बालिग मुसलमान पर। सवाल है मुसाफिर के लिए रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब है छोड़ सकता है, बाद में कज़ा करेगा। सवाल है क्या शदीद बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है? जवाब है जी हाँ, बाद में कज़ा लाजिम है। सवाल है रमज़ान के आखिरी अशरे की ख़ास इबादत क्या है? जवाब है एतकाफ। सवाल है एतकाफ कहाँ किया जाता है? जवाब है मस्जिद में। सवाल है ज़कात आमतौर पर किस महीने में दी जाती है? जवाब है रमज़ान में। सवाल है रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है? जवाब है जानबूझकर खाने पीने से। सवाल है रोज़े की हालत में मिसवाक करना कैसा है? जवाब है जायज़ है। सवाल है रमज़ान में शैतान के साथ क्या होता है? जवाब है कैद कर दिया जाता है। सवाल है रोज़ादार के लिए सबसे बेहतर दुआ कौन सी है? जवाब है इफ्तार के वक़्त की दुआ। सवाल है फितराना कब अदा किया जाता है?
जवाब है ईद उल फित्र से पहले। सवाल है फितराना किस पर वाजिब है? जवाब है हर साहिब इस्तात मुसलमान पर। सवाल है कुरान की तिलावत का खास महीना कौन सा है? जवाब है रमजानुल मुबारक। सवाल है रमजान में नफिल का सवाब कितना बढ़ जाता है? जवाब है फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। सवाल है रमजान के 3 अशरे किसकी अलामत हैं? जवाब है रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात। सवाल है क्या भूल कर खाने से रोजा टूट जाता है? जवाब है जी नहीं। सवाल है रोजादार के मुंह की खुशबू किसके नजदीक पसंदीदा है? जवाब है अल्लाह ताला के नजदीक। सवाल है तरावी में क्या पढ़ा जाता है? जवाब है कुरान पाक की तिलावत। सवाल है रमजान में सबसे बड़ी इबादत क्या है? जवाब है तकवा इख्तियार करना। सवाल है एतकाफ कितने दिन का होता है? जवाब है आखिरी 10 दिन का। सवाल है रोजे की नियत कब की जाती है? जवाब है सहरी के वक़्त या रात में पहले भी की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है क्या औरत को भी हम बिस्तरी की ख्वाहिश होती है? जवाब है जी हाँ, औरत भी इंसान है, फरिश्ता नहीं। उसमें भी फितरी जिनसी ख्वाहिश होती है। सवाल है रमजान में अगर दिन के वक़्त हम बिस्तरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब है अगर जानबूझकर रोजे की हालत में दिन में हम बिस्तरी की जाए तो रोजा टूट जाता है। कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजिम होता है। ये मामला संजीदा है, इसमें लापरवाही नहीं चलती। सवाल है क्या रमजान में रात के वक़्त हम बिस्तरी जायज़ है? जवाब है जी हाँ, इफ्तार के बाद से सहरी तक मियाँ बीवी के लिए जायज़ है। सवाल है अगर रमजान में भूल कर हम बिस्तरी हो जाए तो क्या करें? जवाब है ये अमली तौर पर भूल जाना बहुत कम होता है, मगर असूली बात यह है कि जानबूझकर ना हो तो गुनाह नहीं। अलबत्ता फ़की मसाइल की तफसील के लिए मुस्तनद आलिम से रुजू करना बेहतर है, क्योंकि कफ़ारा और कज़ा के अहकाम नियत और कैफियत पर मुनहसिर होते हैं। सवाल है क्या गुस्ल ना करने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब है जी नहीं। अगर फजर से पहले जनाबत की हालत हो और गुस्ल बाद में करें तो रोज़ा हो जाता है, लेकिन नमाज के लिए गुस्ल फ़र्ज है, इसे टालना दुरुस्त नहीं। सवाल है निकाह के बगैर हम बिस्तरी का क्या हुक्म है? जवाब है ये ज़ना है और इस्लाम में सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। सवाल है शादी के बाद हम बिस्तरी फ़र्ज है या नहीं? जवाब है फ़र्ज नहीं, मगर मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक रखते हैं। बिला वजह एक दूसरे को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं। सवाल है क्या हम बिस्तरी इबादत बन सकती है? जवाब है जी हाँ,
اگر نیت پاک ہو، حلال دائرے میں ہو اور ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی ہو تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نیت واقعی چیز بدل دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا زیادہ ہم بستری صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جواب ہے، اعتدال میں ہو تو عام طور پر نقصان دہ نہیں، حد سے زیادہ ہر چیز نقصان دیتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو یا جذبات۔ سوال ہے، کیا زیادہ ہم بستری سے کمزوری آتی ہے؟ جواب ہے، یہ عام غلط فہمی ہے۔ صحت مند انسان میں اعتدال کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، البتہ اگر پہلے سے کمزوری یا بیماری ہو تو معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، اگر شوہر بیوی کو نظر انداز کرے تو کیا گناہ ہے؟ جواب ہے، بلا وجہ ازدواجی حقوق ادا نہ کرنا ناپسندیدہ اور بعض صورتوں میں گناہ ہو سکتا ہے۔ نکاح صرف نام کا معاہدہ نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ سوال ہے، کیا بیماری میں ہم بستری جائز ہے؟ جواب ہے، اگر طبی نقصان کا خطرہ ہو تو پرہیز بہتر ہے۔ دین خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سوال ہے، کیا ہم بستری سے محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اگر احترام، جذباتی تعلق اور اعتماد موجود ہو تو ازدواجی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ہم بستری جائز ہے؟ جواب ہے، عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، جب تک صحت اجازت دے اور نکاح قائم ہو جائز ہے۔ سوال ہے، رمضان المبارک کس اسلامی مہینے کا نام ہے؟ جواب ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ سوال ہے، رمضان میں کون سی عبادت فرض کی گئی ہے؟ جواب ہے، روزہ رکھنا۔ سوال ہے، روزہ کس سن میں فرض ہوا؟ جواب ہے، 2 ہجری میں۔ سوال ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، یعنی صرف بھوکا رہنا نہیں، خود پر قابو پانا۔ سوال ہے، روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ جواب ہے، سحری کے وقت ختم ہونے یعنی فجر کے آغاز سے۔ سوال ہے، روزہ کب ختم ہوتا ہے؟ جواب ہے، مغرب کی اذان پر۔ سوال ہے، سحری کھانا کیسا ہے؟ جواب ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال ہے، افطار کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ جواب ہے، کھجور یا پانی سے۔ سوال ہے، رمضان میں کون سی رات سب سے افضل ہے؟ جواب ہے، شب قدر۔ سوال ہے، شب قدر کس عشرے میں آتی ہے؟ جواب ہے، آخری عشرے میں۔ سوال ہے، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ جواب ہے، رمضان المبارک میں۔ سوال ہے، تراویح کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے، عشاء کے بعد۔ سوال ہے، تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟
जवाब है आम तौर पर 20 रकअतें। सवाल है रोज़ा किस पर फ़र्ज है? जवाब है हर आकिल बालिग मुसलमान पर। सवाल है मुसाफिर के लिए रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब है छोड़ सकता है, बाद में कज़ा करेगा। सवाल है क्या शदीद बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है? जवाब है जी हाँ, बाद में कज़ा लाजिम है। सवाल है रमज़ान के आखिरी अशरे की ख़ास इबादत क्या है? जवाब है एतकाफ़। सवाल है एतकाफ़ कहाँ किया जाता है? जवाब है मस्जिद में। सवाल है ज़कात आम तौर पर किस महीने में दी जाती है? जवाब है रमज़ान में। सवाल है रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है? जवाब है जानबूझकर खाने पीने से। सवाल है रोज़े की हालत में मिसवाक करना कैसा है? जवाब है जायज़ है। सवाल है रमज़ान में शैतान के साथ क्या होता है? जवाब है कैद कर दिया जाता है। सवाल है रोज़ादार के लिए सबसे बेहतर दुआ कौन सी है? जवाब है इफ्तार के वक़्त की दुआ। सवाल है फितराना कब अदा किया जाता है? जवाब है ईद उल फित्र से पहले। सवाल है फितराना किस पर वाजिब है? जवाब है हर साहिब इस्तात मुसलमान पर। सवाल है कुरान की तिलावत का ख़ास महीना कौन सा है? जवाब है रमज़ानुल मुबारक। सवाल है रमज़ान में नफिल का सवाब कितना बढ़ जाता है? जवाब है फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। सवाल है रमज़ान के 3 अशरे किसकी अलामत हैं? जवाब है रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात। सवाल है क्या भूल कर खाने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब है जी नहीं। सवाल है रोज़ादार के मुंह की खुशबू किसके नज़दीक पसंदीदा है? जवाब है अल्लाह ताला के नज़दीक। सवाल है तरावी में क्या पढ़ा जाता है? जवाब है कुरान पाक की तिलावत। सवाल है रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत क्या है? जवाब है तकवा इख्तियार करना। सवाल है एतकाफ कितने दिन का होता है? जवाब है आखिरी 10 दिन का। सवाल है रोज़े की नियत कब की जाती है? जवाब है सहरी के वक़्त या रात में पहले भी की जा सकती है।